Hello, hello everyone. Today I am going to discuss about the seventh lecture of the chapter, that is reproduction in the lower and higher plant. After completion of pollen interaction, our next topic is double fertilization. So today we are going to discuss about the double fertilization. What is double fertilization, where it is occur, and what is the significance of the double fertilization? Okay. So what is the double fertilization? How it takes place? Introduction. The process of fusion of male and female gamete to form diploid zygote is called fertilization. As you know कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज होता है तो वहां पे एक डेवलपमेंट होता है. व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन टू रिएक्टिंग. यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका नाम है जाइगोट. एंड ये जो टाइप की रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, इन द सिंपल टर्म दिस इज अ सिंपल फर्टिलाइजेशन. Now, what is double fertilization? So the fusion of one male gamete with egg and another male gamete with secondary nucleus, that is known as a double fertilization, which we are going to see in the diagram. इसके बाद मैं I will show you a diagram, and diagram में देखेंगे कि किस तरह से double fertilization का process होता है. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, दैट इज एग, एंड अनदर मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होता है, फ्यूज होता है. एंड बिकॉज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द टू प्लेस, दैट दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके. पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में यू हैव सीन कि जब स्टिग्मा में पॉलन को आइडेंटिफाई किया तो they allow only the male gamete to enter. तो वहाँ पे दो male nucleus release हुए थे. So this two male nucleus, one male gamete really fused with the egg, और एक और दूसरा बचता है that is fused with the female gamete. एक female gamete और एक secondary nucleus के साथ combine होता है. तो यहाँ पे दो time fertilization होता है. That is why this term is known as the double fertilization. All angiosperm are the characterized by the unique process called double fertilization. तो जितने भी angiospermic plant है, because all the lower group of plant में double fertilization नहीं होता है. Algae, fungus, bryophyte, pteridophyte, till gymnosperm, the double fertilization is never observed. This is one of the important. This is one of the unique character of the all the angiosperm plant. It may be monopod or dipod. इन दोनों में double fertilization process होता है. It was discovered by S.G. Navasin in 1898 in William and Fritillaria species. तो सबसे पहला आइडेंटिफाई करने वाला जो पर्सन था जिसने डिस्कवर किया, दैट इज S.G. नवासिन. 1898 में उसने सबसे पहला जो प्लांट में ऑब्जर्व किया था डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज लीलियम एंड प्लेटिलेरिया. ये दो स्पीसीज में सबसे पहला इसने डबल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया था. तो जैसे मैंने बताया, यू कैन सी द डायग्राम, दैट इज दिस इज अ पॉलन ग्रेन. तो पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा के ऊपर फॉल हुआ तो देयर इज अ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन टेक प्लेस. तो एक बार अगर वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, देन स्टिग्मा अलाउ पॉलन ग्रेन टू डेवलप द पॉलन ट्यूब. वहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और जो मेल जर्म सेल है वो दे रिलीज द टू मेल गैमेट, और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू वो ओवरी के एंट्री पार्ट तक पहुंचते हैं. ओविल के एंट्री पार्ट तक पहुंचते हैं, दैट इज माइक्रोपाइल. एंड वहां पे फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है. फीमेल जर्म सेल इन द सेंस दैट इज फीमेल गैमेट. ओके. After pollination, pollen grain germinate on the stigma to form a pollen twin. जैसे मैंने बताया कि germination, pollination होने के बाद एक बार ये डिसाइड हो गया कि that is the right type of pollen grain, stigma are allowed to germinate the pollen grain on the
फ्लोर, तो जर्मिनेशन होना शुरू होता है एंड सिग्मा जो pollen grain है दे आर स्टार्टिंग टू डेवलप द pollen tube. Pollen tube grows downward toward the oval in the ovary. तो downward because उसको oval के अंदर entry करना for the fertilization, तो नीचे की tubard हो with the style के अंदर से pollen tube का development होना शुरू होता है. It carries two non-motile male gamete. Again इसमें pollen tube के अंदर दो male gamete होते हैं जो कि non-motile है. It cannot move from one place to another. वो खुद से move नहीं कर सकते. थिन साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म काफी पतले होते हैं. डीजेनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस देते. तो जैसे न्यूक्लियस जो मेल गैमेट है वो जैसे एंट्री करते वैसे ही जो pollen tube होता है वो डीजेनरेट हो जाता है. Growth of pollen tube occurs at the tips where most of the cytoplasm is concentrated. तो जब टिप के ऊपर pollen tube का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे साइटोप्लाज्म जो है पूरा ऐसा कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में दिखाई देते हैं. On reaching the ovary, the pollen tube mostly enter in the ovule through the micropyle region that is known as the porogamy. So we are going to study the different method of entry of pollen tube. So basically we have the three type of entry. तो जैसे pollen grain ओविल के पास पहुंचा तो सीधा उसका एंट्री होता है माइक्रोपाइल के थ्रू एंड सच टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज द porogamy. When the pollen grain, when the male gametes are entered, when the pollen tube are entered through the micropyle region, such type of entry is known as the porogamy. Sometimes it enter to the integument. अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, माइक्रोपाइल अगर किसी कारण ब्लॉक हो चुका है, यहाँ वहाँ पे कोई दूसरा एक्सटर्नल एजेंट आके वहाँ पे स्टिक हो गया है, यहाँ पे चांस नहीं है pollen tube को एंट्री करने के लिए, तो pollen tube एक दूसरे तरीके से मतलब एक दूसरा वे है उसको एंटर करने का, and that is known as the integument. So when the pollen tube are entered to the integument, such type of entry is known as the mesogamy. अगर वो माइक्रोफाइल के थ्रू कर रहा है तो दैट इज नोन एज द पोरोगैमी, एंड अगर इंट्यूब्यूमेन के थ्रू कर रहा है दैट इज नोन एज द मीसोगैमी. Third type of entry is known as the chalazogamy, where the pollen tube are entered to the chalazal region. तो अगर चलाजल रीजन से एंट्री कर रहा है तो दैट इज नोन एज चलाजोगैमी. अगर इंटेगुमेंट से एंट्री कर रहा है pollen tube तो उसको मीसोगैमी बोलते हैं. इफ इट इज एंटर थ्रू द micropyle region that is known as the porogamy. But most of the plant में जो entry of pollen tube है that take place through the micropylar region. ये बहुत कम केस हैं जहाँ पे pollen tube का जो एंट्री होता है वो इंटीग्यूमेंट के थ्रू हो या Chalaza part के through हो. You can see the three structure of porogamy, chalazogamy and mesogamy. So porogamy, the pollen tube are entered through the micropyle region. So such type of entry is known as the porogamy. यहाँ पे clearly दिया हुआ है. Chalazogamy, if the pollen tube are entered through the uh, chalazal part, so such type of entry is known as the chalazogamy. अगर वो सीधा इंटीग्यूमेंट से एंटर कर रहा है तो such type of entry is known as the mesogamy. तो ये तीन टाइप की एंट्री है जो कि pollen tube मेल गैमेट को ओवल के अंदर अलाउ करती है, एंट्री करते हैं. नाउ irrespective of the place entry into the oval, the pollen tube always enter the embryo sac near the egg apparatus. तो उसके बाद pollen tube हमेशा embryo sac के पास पहुंचते हैं जो कि egg apparatus के पास होता है. वहाँ पे filiform apparatus है जिसको हम लोग synergid कहते हैं. तो वो pollen tube को attract करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और वहाँ पे से एक सिनर्जी जो है वो बर्स्ट होता है और वो बर्स्ट होने के बाद दो मेल गैमेट को रिलीज करता है. देन वन ऑफ दिस मेल गैमेट ब्रिंग अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. तो उसमें का एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो वहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है. एंड सेकेंड जो होता है दैट फर्टिलाइज विद द पोलर न्यूक्लियस, जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ वो फर्टिलाइजेशन करता है. तो यहाँ पे एक जो एग फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और उसके बाद सेकेंड जो पोलर न्यूक्लियर जो सेकेंडरी न्यूक्लियर है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ
PEN, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो फर्स्ट इज नोन एज द सीड गैमीट। डबल फर्टिलाइजेशन दो बार होता है, तो फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी भी कहते हैं। द अनदर टर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द सिंगैमी। So one of the male gametes fused with the egg or the ooze pair to form diploid zygote or ooze spore. This is called a syngamy or first fertilization. उसमें का एक मेल गैमेट एंट्री होने के बाद they just fuse with the egg, और एग के साथ जैसे वो फ्यूज हो गया तो वहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट, बिकॉज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होके दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू एन, दैट इज डिप्लॉइड जाइगोट, एंड इसको सिंगैमी या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ ट्रिपल फ्यूजन और सेकेंड फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो जाके फ्यूज होता है कहाँ पे? जो सेंट्रल में सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है वहाँ पे। वो ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है जो कि फ्यूज है, तो यहाँ पे एक मेल गैमेट जाके उन दोनों के साथ फ्यूज करता है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको PEN कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पे तीन बार फ्यूजन हो रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज अ ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे सेकंड फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है ट्रिपल फ्यूजन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जहाँ पे मेल गैमेट fuse with egg, that is a female gamete, result in the formation of zygote. So you can say the syngamy or first fertilization. Second male gamete, जो कि polar nuclear or secondary nucleus is present in at the center of the ovule. Okay, वहाँ पे जाके fuse होता है, and that is the result of PEN, ट्रिप्लॉइड, PEN 3N होता है, ट्रिपल फ्यूजन। दो तो पहले ही थे वहाँ पे, एक मेल गैमेट जाके फ्यूज होने के कारण दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्योंकि तीन बार फ्यूजन हो रहा है, तीन गैमेट आपस सॉरी तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जाइगोट है, यू हैव टू रिमेंबर, एंड सेकंड फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो है दैट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Since each of the polar nuclei is a sister nuclei of the egg and is called the second fertilization. Now, what is hyphenogamy? Very important term. The fertilization process in which non-motile gametes are transported up to the female gamete through the pollen tube is called hyphenogamy, because pollen grain are non-motile। जो pollen grain जो male gamete है, pollen grain के अंदर की दो male gamete है, that is non-motile। तो साइफन इज लाइक अ ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब के अंदर से मेल गैमेट का अंदर जाना, पॉलन ट्यूब के अंदर से जो मूवमेंट होता है ना, सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द साइफोनोगैमी। द मूवमेंट व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द ट्यूब, दैट इज द पॉलन ट्यूब, and such type of movement is known as the siphonogamy. So double fertilization is significant, but it involves the use of both the male gametes produced by the pollinators. ये बहुत ही significant event है in the case of angiospermic plant, जहाँ पे दोनों मेल गैमेट का प्रॉपरली यूज किया जाता है, जो कि पॉलिनेटर ने प्रोड्यूस किया। दिस अवॉइड द चांस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे क्योंकि दो ही गैमेट है, दोनों का प्रॉपरली यूज करते हैं, तो यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी का चांस बहुत कम होता है, जहाँ पे मैक्सिमम एम्ब्रियो डेवलप हो and increase the survival of the future plant, because polyembryo ज़्यादा डेवलप होगा तो that is the development of lot of seed and survival of the plant का बचना आगे बहुत मुश्किल होता है। तो तो डबल फर्टिलाइजेशन जिस तरह से दोनों मेल गैमेट को प्रॉपरली यूज कर रहा है, तो यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं होता है, एंड दैट इज इंक्रीज की वो प्लांट आगे जाके फ्यूचर में प्रॉपरली सर्वाइव करेगा। It is consist of tube fusion, as a result it forms the tube product। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे दो फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन रिस्टोर डिप्लॉयड इन द लाइफ साइकिल। तो जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि ये कंटिन्यूस के लाइफ साइकिल में होता है। डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो जाइगोट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है।
It is a unique feature of angiosperm. It ensures that the parent plant invests a seed with food store only if the egg is fertilized. ठीक है, तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म. ये डिपेंड करता है पेरेंट जो कि सीड का फॉर्मेशन हुआ, उस सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है कैन स्टोर ऑफ फूड फर्टिलाइजेशन के बाद. और जब तक एक सीड खुद से जर्मिनेट होके रूट और शूट का डेवलपमेंट नहीं होता, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के एबल नहीं है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन के एबल नहीं है, तब तक के लिए एंडोस्पर्म उनको फूड सप्लाई करने का काम करता है. The diploid zygote develop into embryo, consequently develop into the new plant. The triploid PEN is a nutritive tissue, therefore seed are more viable. तो यहाँ पे जो डिप्लॉइड जाइगोट है सबसे पहला एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो से नए प्लांट बनते हैं. और जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म है, जो सेकंड प्रोडक्ट है, वो काफी न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म है जो कि सीड को मोर वाइबल बनाते हैं. जैसे मैं बताया कि if the seed are not able to absorb the water from the soil or they are not able to perform the photosynthesis, तो उसको food and water कौन provide करता है? That was provided by the nutritive tissue, that name is PEN, diploid PEN, जो कि second product है double fertilization. This is significant of double fertilization and here we end the topic double fertilization. इसके बाद we are going to see the post fertilization chains. फर्टिलाइजेशन होने के बाद का जो प्रोसेस है, how does the endosperm development take place and how does the embryo formation take place. तो ये दो टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट जो है वो रह गया है. और ये दो टॉपिक के बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन खत्म कर देंगे. देन वी आर गोइंग टू सी सम लिटिल टॉपिक अबाउट पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थेनोकार्पी. तो ये कुछ टॉपिक है जो कि एक आध लेक्चर में ये पूरा हम चैप्टर फिनिश कर देंगे. तो आज का टॉपिक हमने खत्म कर दिया.